Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 6 of English, and our recommended book is English First Flight, a textbook of English for class 10. And in 6, the chapter name is The 100 Dresses Part 2. Students, we already discussed the 100 Dresses Part 1. Now it's time for Part 2. Here, the story. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. जब कक्षा कमरे में चक्कर लगा रही थी तो मॉनिटर प्राचार्य के ऑफिस से एक मिस मैसन को एक नोट लाकर दिया। मिस मैसन ने इसको कई बार पढ़ा और इसको विचारपूर्वक पढ़ा। फिर उसने ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "Have a letter from the Wanda's father that I want to read to you." सावधान क्लास, हर एक वापस अपनी सीट पर चले जाओ। जब पैरों के चलने की आवाज़ बंद हुई और कमरे में फिर एक बार फिर से चुप्पी छा गई थी, मिस मैसन ने कहा, मेरे पास वेंडा के पिता का एक पत्र है जिसको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that was coming this letter from Wanda's father. What a matter of great importance. Everybody listened closely. Miss Mason read the brief note. मिस मैसन वहाँ पर एक पल खड़ी रहीं और कमरे की चुप्पी में तनाव आ गया। अध्यापक ने अपने चश्मे को ठीक किए। उसका ढंग जो कुछ होने जा रहा था उसका संकेत कर रहा था कि वेंडा का पिता एक बहुत इम्पोर्टेंट पत्र था। जैसे ही मिस मैसन ने यह संक्षिप्त नोट पढ़ हर एक ने ध्यानपूर्वक सुना। डियर टीचर, ये उस पत्र में लिखा हुआ है स्टूडेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जैक ऑल्सो। नाउ वी मूव away to big city. No more holler Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Peronsky. प्रिय अध्यापक, मेरी वांडा अब और आपके स्कूल में नहीं आएगी, जैक भी नहीं। हम अब एक बड़े शहर में जाएंगे। अब और चिल्लाकर कोई नहीं बोलेगा। पोलाक पोलैंड के आदमी के लिए प्रयोग किया गया भद्दा शब्द। और अब नहीं पूछा जाएगा कि इतना मजाकिया नाम क्यों। बड़े शहर में ऐसे मजाकिया नाम बहुत होते हैं। आपका जैन पेट्रोन्स्की। अब ये दिया है। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. मिस मैसन took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. इस पत्र के बाद एक गहरी सी चुप्पी छा गई। मैसन ने अपने चश्मे उतारे, उन पर फूंक मारी। वो जो मैसन टीचर है स्टूडेंट, वो अपने चश्मे को उतार कर उस पर फूंक मारती और अपने मुलायम रुमाल से, कोमल रुमाल से, वाइट कलर का जो है, उससे वो पोंछती हैं। फिर उसने उसको दोबारा पहना और कक्षा की तरफ देखा। जब वो बोली, उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. मुझे पूरा विश्वास है कि कमरा नंबर 13 के लड़के लड़कियों में से कोई भी जानबूझकर
चालाकी से इसलिए किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेगा कि उसका नाम लंबा और अनजान है। मैं यह सोचती हूँ कि जो कुछ कहा गया था वो बिना सोचे समझे कहा गया था। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह महसूस कर रहे होंगे। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना थी, दुर्भाग्यशाली और उदास करने वाली, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. पहला पीरियड पढ़ाई का था। मैडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश की, परंतु वह अपना मन अपने पढ़ाई में नहीं लगा पाई। उसके अंदर एक बेहद बीमार भावना थी। सच में उसे पेगी द्वारा वेंडा को यह पूछने कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें थीं, अलमारी में कितनी पोशाकें थीं और अलमारी में कभी आनंद नहीं। ये जो सवाल था ये वेंडा से पेगी पूछी थी कि उसके अलमीरे में कितने ड्रेसेस है, कितने डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के, और ये कभी भी आनंद नहीं करने वाला सवाल था। परंतु उसने कुछ नहीं कहा था। वो चुपचाप खड़ी थी वेंडा उनकी ये सवालों पर, और वह भी उतना ही बुरा था जो पेगी कर चुकी थी। वह एक डरपोक थी। कम से कम पेगी तो ऐसा नहीं समझती थी कि वो घटिया बन रही थी, परंतु मैडी ने सोचा था कि वे गलत कर रही है। वह खुद को वेंडा जैसी स्थिति में डाल सकती थी। गुडनेस, was not there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the height with her, and they would tell Wanda she had won the contest, that they brought she was smart and the 100 dresses were beautiful. भला हो क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी। वह केवल एक वेंडा को बता पाती कि उसका मतलब उसकी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। वह घूमी और चोरी से एक दृष्टि पेगी पर डाली, परंतु पेगी ने उस पर नहीं देखा। वह काफ़ी मेहनत से पढ़ते हुए दिखाई दी। ठीक है, चाहे पेगी ने बुरा महसूस किया था या नहीं, उसे मैडी को ज़रूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसने वेंडा पेट्रोंस्की को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है वह अभी दूर नहीं गई हो सकता है कि पेगी भी उसके साथ मैडी के साथ हाइट्स पर चले और वे वेंडा को बताएं कि उसने मुकाबला जीत लिया है ये कंपटीशन को। एंड वे सोचते थे कि वह सुंदर थी और 100 पोशाक सुंदर थी। हेयर आर सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को आपको करना है अपने क्लास और कॉपी में। Now that's all for today. We'll discuss the next topic in the next video. That's all for today. Thank you. Have a nice day.